Hi viewers. As a realtor, a question which I am frequently asked is how to get a good deal. क्या करने से हमें एक अच्छा डील मिल सकता है? So today I'm going to touch upon a few points which can help you as a home buyer get a great deal. So we're going to break this down into two steps. One is identification. हमें अच्छा डील जब हमारे सामने आता है तब हमें उसे पहचानना होगा. To identify a good deal, we'll have to differentiate it from the bad deals. We'll have to know where is the market. Market price क्या है? So there are tools available. We are having this conversation in 2022 when there is a lot more transparency in real estate. First and foremost, आप actual transaction data देख सकते हैं. There are resources available where you can see actual transacted prices of the flats which in the building which you are probably considering. Indextab.com is one great resource. There are others as well. They are free to use. Use them. Have a conversation with a broker, someone who's not merely chasing you for your business, but also doesn't mind giving you right advice and doesn't mind sharing facts and figures. ऐसे किसी बंदे से बात कीजिए और सीधा पूछिए कि ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रहे हैं, क्या फलाना फ्लैट फलाना बिल्डिंग में किस प्राइस पे लास्ट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बताइए हमें. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू अराइव एट अ प्राइसेस. फॉर माय ओपिनियन, मार्केट को समझिए तो आप अच्छे डील की पहचान कर सकोगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन डेवलपर एंड रीसेल या इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज, आप ऑल इंक्लूसिव टू ऑल इंक्लूसिव कंपैरिजन करिए, बिकॉज बिल्डर्स अपने प्राइसेस ऑल इंक्लूसिव बेसिस पे आज की तारीख में मेजॉरिटी बिल्डर्स ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस बताते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेर एज रीसेल में मोस्ट पीपल ओनली टॉक फ्लैट प्राइसेस विदाउट talking about stamp duty and the other charges, transfer charges, all of those charges. So apple to apple comparison करें हमेशा. Another super important point is very unique to real estate. Real estate एक financial asset नहीं है. Stock market में एक बुरी कंपनी का स्टॉक अगर सस्ते में मिले तो it can be a great deal because it can appreciate and you can make some money despite the company being bad because the stock was undervalued. रियल एस्टेट इज अ वेरी इंटीमेट एसेट. ये एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये एक एसेट है जिसमें आप रहोगे. सो यू कैनॉट टेक, सो द आइडिया कैन नेवर बी टू चेज डिस्काउंट्स. डोंट चेज डिस्काउंट्स, चेज वैल्यू. आप वैल्यू के पीछे जाइए, ना कि डिस्काउंट्स के पीछे. अगर एक बहुत 50% डिस्काउंट पे आपको कोई घर मिला जिसके सामने हाईवे है और दो साइड से नाले जा रहे हैं, तो you may get a huge discount, but आप उस वैसे घर में आप रह नहीं पाओगे. So that is a short point. Chase value, not discounts. So you do all this and you can get a certain sense of where the market is and you will be somewhat prepared to identify a good deal. Now the second step is to grab the deal when the deal comes to you. अच्छे डील को आपको एग्जीक्यूट करना है. ये आप कैसे करोगे? Preparation. What kind of preparation? You will want to know. Now the second step is preparation. You will have to know your financial ability very very well. आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो? Add up all your things, all your the liquid assets that you hold. आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आपके स्टॉक होल्डिंग्स हैं तो कंसिडर कीजिए कि 5 से 7% आप लूज करोगे जो आपके स्टॉक की वैल्यू है. That happens. So it's always better to be prepared. Next very super important point is have a contingency fund. कोई भी अपनी सारी जमा पूंजी घर लेने में नहीं निकाल के लगा देता. You have to keep a contingency fund which is your living expenses. Typically a thumb rule is to have at least 12 to 18 months of living expenses with you when you are entering into a house purchase decision. अपना डाउन पेमेंट समझिए and अपनी financial, अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी समझिए. Try and get a pre-sanction approval from a couple of banks. Do this and you will know what is the amount that you can target. Also, there are transaction costs. There is stamp duty, there is registration charges, brokerage, all these things add up. So when you arrive at a target number, keep all this, do all this planning. ये planning करने से क्या फायदा होगा? ये planning करने से आपको वो फिगर पता चलेगा जो आपका टारगेट रेंज है.
और जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो फर्स्ट स्टेप में जब आपने अच्छा डील आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में आपके प्रिपेयर्ड होने की वजह से आप उस डील को डिसाइसिवली ग्रैब कर सकेंगे, आप उस डील को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, आप अपना टोकन प्रेजेंट कर सकेंगे कोई दूसरे के करने के पहले. यू कैन बी अहेड ऑफ द पैक. सो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प यू. वेल, द थर्ड पार्ट इज द व्यूइंग्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एज अ रियल्टर मैं कई बार मैं ये देखता हूं कि पीपल गो लुकिंग फॉर फ्लैट्स, दे लुक एट 25, 30, 40 फ्लैट्स एंड इट बिकम्स अ मैशअप. उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, फिर क्या देखा था, क्या शॉर्टलिस्ट किया था, क्या बेसिस पे फ्लैट्स को शॉर्टलिस्ट किया था. सो माई अप्रोच, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टू बी जुडिशियस. हमें स्नाइपिंग करना है, हमें मशीन गन फायर नहीं करना है. व्हाट वी नीड टू डू इज, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिन घरों के आप अगर फ्लोर प्लान देखें, अगर आप उनके स्पेसिफिकेशंस को समझे और फ्लोर प्लान देखें तो आप कई सारे ऑप्शंस घर बैठे बैठे खारिज कर सकते हो. सो वंस यू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, you will be left with probably no more than 10 flats to actually go and visit. Even fewer, 10 is probably on the higher side. So when you do this, you will have saved a lot of time. Again, there is another dimension to this. Typically आज की तारीख में बहुत बार हम डेवलपर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंसिडर कर रहे होते हैं, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स कंसिडर कर रहे होते हैं, जहाँ पे कई सारे टावर होते हैं, कई सारे फ्लैट्स होते हैं देखने के लिए, सैम्पल फ्लैट होता है, एक्चुअल फ्लैट्स होते हैं. इफ यू आर डूइंग दिस, माई एडवाइस वुड बी टू नेवर पैक मोर देन 2 or 3 प्रोजेक्ट्स मैक्स इन अ सिंगल डे. बड़े टाउनशिप्स, बड़े प्रोजेक्ट्स का डेटा के नंबर्स की सारी चीजें अपने दिमाग में एसिमुलेट करने के लिए बहुत एफर्ट लगती है, और यूजुअली 2 प्रोजेक्ट्स के बाद आपकी याद रखने की कैपेबिलिटी काफी अफेक्ट हो जाती है. फिर आप डिटेल्स मिस करोगे एंड यू विल बी फॉर्मिंग डिसीजंस ऑन हाफ अंडरस्टूड और हाफ रिमेंबर्ड डेटा. सो नहीं करें, स्प्रेड इट आउट. क्या जल्दी है? सो that's another super important point. I have made a note of all these experiences which I have come across, in my career in real estate. So finally, another important point is when you shortlist some options, try and view them in different times of the day. अगर आपने कोई फ्लैट पसंद किया है तो उसे प्रेफरेबली डे लाइट में देखिए, तो ताकि आपको समझे कि नेचुरल लाइट कैसी होगी. शाम को जाके देखिए, रात को जाके देखिए कि वो विसिनिटी कितनी सेफ लगती है, रात को लोग दिखते हैं सड़क पे, कैसा लगता है वहां पे, सेफ फील होता है, नहीं होता है. स्पेशली दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद अ सर्टेन एरिया. आप किसी नए टाउनशिप को कंसिडर कर रहे हो जहां आप फ्रीक्वेंटली नहीं जाते, तो ये करना बहुत बहुत जरूरी है. ये सब कर लिया, चलो नाउ इट बॉइल्स डाउन टू मे बी 2 or 3 options which you now really like. When you come to that stage, friends, my advice is to have 2 options in hand. 2 वो घर चुनिए जो आपको ऑलमोस्ट इक्वली पसंद है. ये करने से ये फायदा होगा कि आप इमोशनल नहीं होगे जब आप डिसीजन मेकिंग की बारी आती है. When you are negotiating, if you have only one house that you really liked and you are putting all your effort in trying to do a deal, आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा कि यार कहीं छूट ना जाए ये डील, अगर ये घर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगा. अगर आपके पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो आप इस तरह से डिफेंसिवली नहीं सोचोगे एंड यू विल बी एबल टू नेगोशिएट ऑन योर टर्म्स. यू विल बी एबल टू नेगोशिएट स्ट्रॉन्गर. सो दैट विल गिव यू, दीज आर सम टिप्स माय फ्रेंड्स विच विल हेल्प यू गेट अ गुड डील फॉर योरसेल्फ. इससे आपको एक अच्छा डील मिल सकता है. These are probably not, this is not an exhaustive list. I may from time to time add more pointers. So watch this space and subscribe to Intelligent. The whole idea of Intelligent is to be bringing in thoughts which make home buying intelligent, make the process stronger and give you a better result in your home buying process, buying or selling process for that matter. Thank you so much guys. View, like, subscribe. Thanks. Cheers.